रिकॉर्ड करके हम इसको फिर क्या कहते हैं, एक सेकंड, हाँ, तो हमारा बेसिकली फॉर्मेट ये रहता है कि हम इसमें इसको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में करते हैं। क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में करने के बाद इसको हम अपलोड भी कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि रियल टाइम में ना काफी सारे बच्चे ऐड नहीं हो पाते हैं, लेकिन सुनना सबको होता है, क्योंकि हर कोई हमारी टाइमिंग के हिसाब से अवेलेबल नहीं हो पाता है या कुछ भी इशू है, तो हम इसको रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर देते हैं। हमने अभी जैसे लास्ट टाइम अगर आपने कभी देखा होगा हमारे पेज को, तो हमने अभी 2-3 सेशंस किए थे। एक आलोक गर्ग सर हैं, वो इंडियस वाले, उनके साथ हमने एक सेशन किया था। एक रोहित सिंह जी हैं, लास्ट सेशन हमने उनके साथ किया था जीएसटी पर। तो ये सीरीज हमने चला रखी है। तो आज हमने सोचा इस बार फोरेंसिक ऑडिट, क्योंकि फोरेंसिक ऑडिट पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फोरेंसिक ऑडिट के साथ नॉर्मल ऑडिट वगैरह भी इंक्लूड हो जाएगी, कैसे कैसे क्या है प्रोफाइल वगैरह सब। तो सर सबसे पहले थोड़ा सा सेशन स्टार्ट कर लेते हैं, हम इतने लोग आ जाएंगे। तो थोड़ा सा सर एक बार फोरेंसिक ऑडिट प्रोफाइल के बारे में हमें बताइए ब्रीफ में कि क्या है कैसे है, फिर हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। अबाउट माय प्रोफाइल और अबाउट फोरेंसिक ऑडिट? फोरेंसिक ऑडिट के बारे में, आपके बारे में बता दीजिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि मतलब कि पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। क्या पर्सनैलिटी तो कोई बड़ी नहीं है, छोटी सी है। ठीक है। frankly, forensic audit I would say is the order of the day, because आपके टैक्स में सब फेसलेस हो गया है, आपके सारे असेसमेंट्स फेसलेस हो गई हैं, अपील्स फेसलेस हो गए, आईटीटी भी इन कमिंग टाइम में भी इन ईयर और सो फेसलेस हो जाएगा। तो टैक्स according to me, again, it is my personal opinion, I cannot say for others, but according to me tax has reached the saturation level, और assessments और में तो ज्यादा काम नहीं है, basically appeals and IDT रहेगा, it would be there. Then for any other field I would say yes, it is growing, but at the same time there is a limitation to it. But forensic is the only field in today's time which is growing and there is no limitation. In fact, it has just started to grow, so it would take its own sweet time to grow in India. Abroad, it is yes, it has grown to a large extent, but again, new avenues are coming up like matrimonial forensics, crowdfunding forensics. They are the unexplored territory abroad as well. So in abroad also, in other countries globally. So these two areas are coming up in forensics. Otherwise, the other areas are already well established in many countries. But if I come to India, right now forensic per se is not well established. So it would take time to get established properly, having all the prerequisites like having a what you can call having a recourse, a legal recourse for forensic auditors, having a legal help for forensic auditors, because right now it is totally open, and forensic auditors, the authority is not that much, but the responsibility is huge. So in the court of law also, we have to save ourselves, or we have to substantiate our working. So globally, yes, they have the limitations. So globally, forensic auditors are very well equipped to face the court of law, which is not there in India right now, but sooner than later it would come in India as well. But yes, forensic audit per se in India, it is growing, and it is I think the only growing field for chartered accountants. Okay. Thank you, sir. तो सर जैसे नए सीएस बनते हैं, फ्रेशर सीएस हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली क्वालिफाई किया है विद इन 6 मंथ और विद इन 12 मंथ, जिन्होंने अभी अपना कैरियर हो सकता है स्टार्ट ना किया हो, या फिर क्योंकि कोविड की वजह से कई लोगों का कैरियर भी स्टार्ट नहीं हुआ है, और कईयों ने चूज भी नहीं किया है कैरियर, तो वो कैसे मतलब अपना कैरियर चूज कर सकते हैं? क्या क्या चीजें उनको ध्यान में रखनी चाहिए, किस तरह की उनको स्टडी करनी चाहिए, उनके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस। See, forensic is not a lot different from the normal audit, a statutory audit, I would say. But at the same time, the whole mindset changes in forensic.
The only difference in forensic audit is the change of mindset. A normal audit, go and do audit, you just certify or you just say financial transfer. And if you're going for internal audit, we have to see the processes and say whether there are any loopholes or not. So we don't have a very definite objective in the normal audit, whereas in forensic audit, the moment we commence the forensic audit, we say that yes, the theft has happened, corporate theft has happened, and we have to find out and we have to collect the evidence against that. So when we go to a company for doing a forensic audit, we say always here that the चोरी हो चुकी है, अब चोर को पकड़ना है. Whereas in a normal audit जा रहे हैं, checklist है, सब है, it is going on. Forensic audit में there is no checklist. With each passing day, you develop your own checklist and do it. The checklist would change according to whatever observations you are getting. So that is the beauty of forensic audit. It is not monotonous. And I think that was the biggest factor for me when I just entered this field, because normal audit for me is monotonous. So I said forensic audit is not monotonous. Let's enter it. कहते हैं ना, जिसका अगर हम हिंदी में बोले जिसका खुराफाती दिमाग हो, तो उसके लिए ये फील्ड बहुत अच्छी है. मतलब you should be very inquisitive. You should be always thinking about something different. You should be not accepting on the face of it everything. If you are not accepting it, if you are questioning yourself, if you are inquisitive, if you are aggressive, forensic audit is the field. But yes, your IT skills, your I would say common sense would play a very big role. तो उनको किस टाइप की मतलब जैसे स्टडी ये मतलब कैसे वो अपनी कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक कोई अपॉर्चुनिटीज, कोई कोर्सेज वगैरह अवेलेबल हो, या कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि सीए फाइनल क्लियर हो गया, अब सीए फाइनल के आगे की पढ़ाई है जो कुछ भी है, तो किस टाइप के कोर्सेज हैं, या फिर मतलब कैरियर स्टार्ट कैसे करें कि भाई आप ये पढ़ लो, ये पढ़ने से आपकी इस टाइप की फर्म में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो एक वे ऐड होता है ना वो. See, frankly, forensic audit में what I would suggest all the chartered accountants is that आप day one पे आप सोचोगे आप forensic audit में घुस जाओगे, नहीं घुस पाओगे. It would take time. Other thing, first you have to understand the industry. Forensic auditor क्या करता है? वो चोरी पकड़ता है. अगर वो चोरी पकड़ते, जब तक उस इंडस्ट्री की वर्किंग का ही नहीं आइडिया है, वो चोरी का पकड़ेगा. अगर उसे पता ही नहीं कि इंडस्ट्री कैसे चलती है, क्या हर इंडस्ट्री का क्या पिकुलरिटीज हैं, थोड़ा आइडिया नहीं होगा, वो चोरी क्या पकड़ पाएगा. So what I would suggest chartered accountants is that once you clear your CA final, there is a post qualification course of our CA Institute FAFD which you should do. Yes, it would not make you expert in forensic audit, but at the same time it will sensitize you about forensic audit. If you want to enter the field, it would sensitize you that what exactly is forensic. So आप उस चीज को सीख सकते हो और उसके बाद उससे आप आगे बढ़ सकते हो. Because forensic again is a buzzword today. ऐसा नहीं है कि और फील्ड्स बेकार हैं, फोरेंसिक ही अच्छी फील्ड है, बट एट द सेम टाइम इसकी अपने स्किल सेट जो चाहिए. आप एक बार एफएफडी का कोर्स कर लोगे तो उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये फील्ड मेरे लिए है या नहीं है. वो डिसीजन आप ले सकते हो. सेकेंड, अगर आपको फोरेंसिक में घुसना है, तो बेस्ट वे अकॉर्डिंग टू मी बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस इज you should enter the internal audit field, do the internal audits, understand the whole processes of the industry, understand everything, side by side just dwell upon the forensic audit, पढ़ते रहो उसे, and you can enter the forensic audit field after doing the FAFD course. फिर आता है FAFD के बाद आप क्या क्या कर सकते हो. वर्ल्ड वाइड there are many courses now for forensic audit. और इंडिया का अगर मैं कोर्स की बात करूँ तो there is a गुजरात फोरेंसिक यूनिवर्सिटी, तो उस यूनिवर्सिटी से आप फोरेंसिक के अलग अलग कोर्सेज कर सकते हो, और वो कोर्सेज करके आप फोरेंसिक फील्ड में डेफिनेटली एंटर करके यू कैन मेक योर नेम इन इट, नॉट इशू एट ऑल. तो सर जैसे आप आई थिंक आप तो एफएफडी कोर्स में फैकल्टी भी हैं, तो थोड़ा सा उस कोर्स के बारे में बताएंगे कि उस कोर्स में मतलब किस टाइप की स्टडी होती है, क्या मतलब थोड़ा सा बेसिक उस कोर्स के बारे में. सी, फोरेंसिक बेसिकली
जो हमारा इंस्टीट्यूट का कोर्स है वो आपको फॉरेंसिक के हर एरिया के बारे में थोड़ा 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 बता देगा। फॉर एग्जांपल फॉरेंसिक में अगर मैं ब्रॉडर लेवल पे बैफिकेट करूं तो फॉरेंसिक आई कैन बैफिकेट इन टू एरियाज, वन इज द फाइनेंशियल फॉरेंसिक, वन इज द डिजिटल फॉरेंसिक। So financial forensic is the area where chartered accountants are used. Digital forensic में भी chartered accountant आ गए हैं, but not at the primary level, at the secondary level to assess the digital forensic experts. तो आपके जो नॉर्मल फाइनेंशियल फोरेंसिक है उसमें जो हमारे सी स्टूडेंट का कोर्स है उसके अंदर देयर आर वेरियस थ्योरम्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड इन फोरेंसिक ऑडिट। वो थ्योरम्स के बारे में बताते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज फोरेंसिक ऑडिट, लीगली क्या क्या हमारे पास रिकोर्स है, क्या हमें करना चाहिए, वो सब इंस्टीट्यूट के कोर्स में बताया जाता है। देन एक्सेल पे देयर आर 2 or 3 लेक्चर्स ऑन एक्सेल बिकॉज एक्सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी टुडे वी आर डीलिंग विद द लार्ज सेट ऑफ डेटा in any company and every company. Data is among us, so you cannot think of working on that data on Excel itself. Excel is very important, but at the same time और भी tools हैं जो आपको और हाई एंड डेटा को माइनिंग करने के लिए हेल्प करते हैं। सो वो भी हमारे कोर्स में बताया जाता है, आइडिया दिया जाता है। एक्सेल इटसेल्फ 10 लाख आइटम तक तो एक्सेल अपने आप में आपको सब कुछ माइनिंग करके दे देगा। सो दैट इज एक्सेल। And as a chartered accountant, we are not using Excel more than 5 to 10% of the actual capability of Excel. तो वो हमें Excel के 3-4 लेक्चर्स होते हैं। Then you have digital forensic. What is digital forensic is your email forensic, network forensic, hard disk forensic. So the IT part of it, mobile forensic, IT part of it is digital forensic. इसके अंदर हम कैसे हम उस इंस्ट्रूमेंट को, उस यूनिट को हम क्लोन करते हैं, इमेज करते हैं, डेटा रिट्रीव करते हैं, और कौन कौन सा डेटा रिट्रीव हो सकता है, डेटा रिट्रीव करके हम उसको कैसे एनालाइज करते हैं, दैट इज कवर्ड इन द डिजिटल फॉरेंसिक पार्ट ऑफ। डिजिटल फॉरेंसिक में बेसिकली क्या होता है कि आपको डेटा रिट्रीव करके उन्होंने एक रीडेबल फॉर्मेट में हमें दे दिया, एंड देन एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट वी वर्क ऑन दैट डेटा एंड गेट आउट व्हाटएवर द ऑब्जर्वेशन वी वांट टू हैव। सो दैट्स व्हाट इंस्टीट्यूट gives help, वो FFD में कराता है। Then they give idea about what the technical experts we use, like handwriting experts हमें कभी कभी काम आते हैं, handwriting हो गया। Then you have like the interviewers, because interviewing techniques are very important in forensics, तो वो interviews बहुत important हो जाते हैं। case studies हैं वो हम कराते हैं उस कोर्स में। So that give a broader picture of the forensic whole स्पेक्ट्रम इन टोटल। मतलब मायने में कब होने लग जाता है कि अच्छा फोरेंसिक ऑडिट में ऐसे काम होता होगा। हाँ, मतलब आइडिया हो जाता है आपको कि फोरेंसिक में क्या क्या होता है। हाँ, प्रैक्टिकली तो फिर प्रैक्टिकली करने से पता ही चलेगा। जैसे एक्सपीरियंस का, फोरेंसिक फील्ड में एक्सपीरियंस का कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज आई एम डूइंग फोरेंसिक फॉर लास्ट 8 years नाउ। जो 8 साल पहले मैं फोरेंसिक में सोचता था और जो आज सोचता हूँ, इट इज टोटली डिफरेंट। बिकॉज 8 साल पहले बुकिश नॉलेज थी कि फोरेंसिक में क्या होता है, बट आज 8 साल बाद इतने केसेस हैंडल करने के बाद, वर्क करने के बाद समझ आता है कि नहीं बहुत कुछ है, और हमें अगर हमें चोर को पकड़ना है तो चोर के माइंडसेट भी हमें समझना पड़ेगा, और वो समझने के लिए एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। ओके। और सर इसमें जैसे अपॉर्चुनिटीज को कैसे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब अपॉर्चुनिटीज को कैसे अप्लाई की तरफ जाएं, मतलब कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, लाइक सीए फर्म है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या फिर मतलब एक सीए फ्रेशर है, अब उसको फोरेंसिक में एक्सपीरियंस लेना है, तब वो क्या करे? बिग फोर करा ही रहे हैं, और भी कई फर्म्स हैं जो फोरेंसिक में एंटर कर चुकी हैं, सो यू कैन ज्वाइन दोस फर्म्स फॉर वर्किंग इन फोरेंसिक फील्ड। तो वो कई फर्म्स हैं जो दे आर डूइंग गुड वर्क इन फोरेंसिक्स। देन इंडस्ट्री भी फोरेंसिक के लिए आपको एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हो चुकी है। HCL has their own forensic teams, Coke has their own forensic team, Pepsi has their own forensic teams, तो उसमें भी आप डायरेक्टली रिक्रूट हो सकते हो। सो इंडस्ट्री इज आल्सो टेकिंग अप। अभी जो इंडियन कंपनीज है उससे फोरेंसिक के लिए नहीं हुआ है, फोरेंसिक टीम्स नहीं बनी है इतनी, बट अदरवाइज MNCs फोरेंसिक टीम बननी स्टार्ट हो चुकी है। सो यू कैन join those teams to understand it, and you can join the CA firms as well as the big fours,
to work in forensic field. So yes, the scope right now is very huge in forensics. जो आईबीसी की प्रोफाइल है, आईबीसी की प्रोफाइल और फोरेंसिक की प्रोफाइल में कुछ रिलेशन है, जिससे हम काम करते हैं तो काफी टाइम वही यूज में आती है, तो कुछ रिलेशन है उसमें? आईबीसी के अंदर जो हम ट्रांजैक्शन ऑडिट करते हैं अंडर सेक्शन 43, 45, 50, 66, that is as good as forensic audit. The nomenclature has changed in IBC. It is called transaction audit, but वो forensic audit ही है. अब हम जब 43 में privileged transaction या preferential transactions हम निकालते हैं, तो वो एक पार्ट है forensic का. फिर हम undervalued transactions निकालते हैं, because see, सब कुछ on the face of it अगर मिल जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर तो कोई भी निकाल लेगा. तो फोरेंसिक एंगल से ही हमें देखना पड़ेगा कि कौन से प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस है, कौन से एक्सटॉर्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है, कौन से अंडरवैल्यू ट्रांजैक्शंस है, और लास्ट सेक्टर सेक्शन 66 व्हिच इज स्पेसिफिकली फॉर फ्रॉड ट्रांजैक्शंस. तो फोरेंसिक तो आपका पूरा कवर हो गया उसके अंदर. ओके. एंड इंटरनल ऑडिट एंड फोरेंसिक ऑडिट, लाइक जैसे कई बार हम ये भी सोच रहे थे कि यार अगर इंटरनल ऑडिट अगर हमें लेट्स सी फोरेंसिक का एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा है तो हम इंटरनल ऑडिट में काम कर लेते हैं, साथ साथ में फिर फोरेंसिक की कोर्सेज कर लेंगे, उसमें स्टडी करते रहते हैं, वन डे वी विल बी एबल टू क्रैक द इंटरव्यू. तो ये कहाँ तक ठीक है, मतलब इंटरनल ऑडिट की प्रोफाइल कितना हेल्प कर सकती है हमें? सेट इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ इंटरनल ऑडिट की प्रोफाइल तो बहुत हेल्प करेगी, बिकॉज़ इंटरनल ऑडिट करने से आपको बेसिक इंडस्ट्री वर्किंग, इंडस्ट्री प्रैक्टिस समझ आ जाता है. आज मैं अगर बात करता हूँ आपके एफएमसीजी सेक्टर की, तो एफएमसीजी सेक्टर का जो फ्रॉड्स हुए हैं आज तक, या फ्रॉड करने का तरीका है उस सेक्टर में, वो एकदम डिफरेंट है फ्रॉम अ लिकर इंडस्ट्री. सो सारे सेक्टर्स के जो फ्रॉड करने का तरीका या सारे सेक्टर में जो क्रिटिकल एरियाज हैं वो अलग अलग है. अब उसके अगर हम जब इंडस्ट्री समझ जाएंगे तो हमें वो एरियाज पकड़ना, उन फ्रॉड्स को पकड़ना बहुत ईजी हो जाता है. So internal audit definitely helps in forensic audit in a big way, no doubt on that. In fact, statutory audit कम help करेगा, internal audit ज्यादा help करेगा, because statutory audit में हम सिर्फ numbers certify कर रहे हैं, हम उसके processes और वो चीजें नहीं देख रहे हैं. अब आ गया है कि हम IFC कर रहे हैं और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स देख रहे हैं, तो वो एक पार्ट डेफिनेटली, लेकिन इंटरनल ऑडिट का स्कोप बहुत बड़ा है, और उस अगर हम उसमें काम करते हैं तो हम फोरेंसिक ऑडिट बहुत अच्छे से कर सकते हैं. दूसरा सर, इसमें जैसे किसी के पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, सबसे पहले तो एक जनरल क्वेश्चन जो मतलब हम हर फैकल्टी से पूछते हैं, क्योंकि एक मेजर क्वेश्चन है और हर किसी अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं. तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि जॉब और प्रैक्टिस, जब वो किसी भी प्रोफाइल में किसी भी फील्ड में हो, तो मतलब आपकी क्या सलाह है कि फ्रेशर्स ये है या 1-2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है, कब जॉब करनी चाहिए, कब प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि हम ये जनरल क्वेश्चन है और इसका ब्रॉड आंसर है, तो हम हर फैकल्टी से पूछते हैं. तो आपके क्या व्यूज हैं इसके ऊपर? माय व्यूज आर लाइक, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, तो व्हेन आई क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी बैक इन 2003, तो उसके बाद आई जॉइंड EY, बिकॉज आई वाज क्लियर कि coming few years down the line I would go into practice, I would do my own practice. So I joined EY. Yes, at that time there were 2 suggestions given to me कि यार अगर तुझे प्रैक्टिस करनी है तो तू प्रैक्टिस में day 1 पे आ जा, तो वो टाइम तो बचा लेगा, और वो 5 साल का जेस्टेशन पीरियड जो होता है प्रैक्टिस का, वो पहले निकल जाएगा. बट मेरा जो माइंडसेट है, जो मेरे जो थिंकिंग थी, वो मेरे एक्सपीरियंस के बाद थोड़ी डिफरेंट हुई. एंड व्हाट आई वुड से इज कि अगर प्रैक्टिस में आना है तो आज नॉर्मल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में आने की जगह आप एक फील्ड में स्पेशलाइज करिए और एक उसमें अपने एक स्ट्रेंथ बनाइए, फिर प्रैक्टिस में आइए. बिकॉज सी, आज आप किसी भी क्लाइंट के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आपका यूएसपी क्या है. आप, मेरे पास तो एज ए सी पीयूष भी है, मेरे पास प्रियंका भी है, मेरे पास रेखा भी है, मेरे पास मुकुल भी है. अब वो डिफरेंस क्या है कि व्हाई आई शुड गिव द वर्क टू मुकुल एंड नॉट टू रेखा, और व्हाई आई शुड गिव द वर्क टू पीयूष एंड नॉट टू प्रियंका. तो आपका यूएसपी क्या है? आप कहोगे जी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस तो सारे ही कर रहे हैं. जब मैं EY में 6 इयर्स लगाने के बाद आया और मैंने कहा जी मैं EY से आया हूँ, EY की मेरी एक्सपीरियंस रहा है और मेरे वो रहा है, तो उनको एक कॉन्फिडेंस अलग आ जाता है क्लाइंट को, यार जो बंदा EY में 6 साल रह चुका और 6 साल सीख चुका, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी थिंकिंग एकदम डिफरेंट है. एंड यस, ही हैज द नॉलेज, ही कैन हैंडल माय वर्क.
तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल मार्केट का बन जाता है. So that's why I would always say go for job after qualifying as a CA. अपनी फील्ड चूज करो. Look, just do the analysis that आपको क्या चीज आपको अच्छा लगता है. So what are your strengths, what are your weaknesses? You have to do your analysis, you have to choose the field, specialize in that for 3 to 4 years and then come into practice. There is no dearth of work otherwise. आज जैसे फॉरेंसिक में एक माइंडसेट था पहले कि ऐसे बिग फोर के पास काम आएगा और बिग फोर से नीचे काम नहीं आता. So when I started this practice, I was said कि यार बिग फोर के पास हमारे पास तो आएगा ही नहीं, लेकिन ये देखते हैं क्या होता है, let's do it. तो जब करा तो yes, after 8 years now I can say I have a decent practice size of practice in forensics, and even I am committing with Big Four. आज we have our own digital forensic lab in Delhi, whereas only 4 firms are having that lab now in North India. One is EY, one is Deloitte, then BDO is having that lab, and we are having the lab. So yes, sky is the limit. If you specialize in that and you work in that, there is no dearth of work. Definitely work is there. सर जैसे आपने 2003 में क्वालिफाई किया और उसके आप कुछ मतलब 7-8 साल बाद आई थिंक फोरेंसिक्स में आए थे, तो ऐसा क्या था कि आपने मतलब फोरेंसिक चूज किया? See, मेरा बैकग्राउंड ये था कि when I did my articleship from SS Kothari, then I joined EY in 2003. So I was with EY from 2003 to 2009. I started with audit, and then in between I got a chance to shift to tax. There is a transaction advisory. So I was part of the due diligence team. तो जब हम ड्यू डिलिजेंस करने लग गए, वो एक्सपीरियंस हमारा बन गया ड्यू डिलिजेंस का, IFRS का. तो I was attracted towards due diligence. So due diligence really attracted me. It was good for me. And then I said, why not to make a career in due diligence itself? So when I was making a career in due diligence, the next step in due diligence was forensic, for sure. तो जब ड्यू डिलिजेंस तक पहुंच गए तो उसका फोरेंसिक में आना एक बट नेचुरल चीज हो जाती है ऐसे कि ये एक फील्ड है जहाँ पे हम काम कर सकते हैं, बिकॉज इट इज मोर देन व्हाट ड्यू डिलिजेंस इज, and it gives more challenges than due diligence. So that's how I entered the forensic field in 2013. 2012 I did the FAFD, second or third batch of the FAFD course of our institute, and from 2013 I am working in this field. सर एक ना क्वेश्चन था, मतलब किसी ने पूछा था अभी कुछ टाइम से व्हाट्सएप पे, वो कह रहे कि जो ये प्रोफाइल है फोरेंसिक ऑडिट की कितनी चैलेंजिंग कितनी है, लाइक इन कंपैरिजन टू अदर प्रोफाइल्स लाइक द स्टैट्यूटरी ऑडिट. आपने कहा कि आपको जाना है सिर्फ मतलब स्टेप्स फॉलो करके आने, चेकलिस्ट फॉलो करके आनी है, ठीक है, और अदर टैक्स की प्रोफाइल है या फिर और भी अदर अकाउंटिंग वगैरह की प्रोफाइल है, तो ये फोरेंसिक की प्रोफाइल कितनी चैलेंजिंग है? फोरेंसिक प्रोफाइल बहुत चैलेंजिंग है, बिकॉज आपके पास हार्ड एंड फास्ट कोई मेथड नहीं है. आपके जो रिपोर्ट होती है वो यूनिक्स होती है. सो ऑल द यूनिक रिपोर्ट यू हैव टू वर्क ऑन इट, ठीक है. सो आप ये नहीं कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते. आप नॉर्मल जैसे हम कहते हैं कि हमने डायरेक्टर्स रिपोर्ट और हमने जो ऑडिट रिपोर्ट है दैट हैज बीन कॉपी पेस्टेड, वी कैन नॉट डू दैट इन फोरेंसिक. Each report, each thing is totally separate, totally according to the scope of work. अगर आज मुझे कोई काम मिलता है इकोनॉमिक ऑम्बुड्समैन दिल्ली पुलिस से और एक मुझे काम मिलता है बैंक से, मिला मुझे दोनों से ही फोरेंसिक ऑडिट है, लेकिन दोनों का स्कोप ऑफ वर्क डिफरेंट है, दोनों की रिपोर्ट एकदम डिफरेंट है. तो there is no hard and fast. You have to make your own reports. You have to substantiate that. आपके पास डॉक्यूमेंटेशन बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, बिकॉज कोर्ट ऑफ लॉ में आपको आंसर देना पड़ता है. So yes, you have to work a lot in forensics. सर जैसे जो ये कंपनियां आपने बताई कि बिग फोर्स हैं या फिर अदर कंपनियां हैं या फिर मिड साइज सीए फर्म्स हैं, ये फोरेंसिक्स के लिए हायर करते हैं, लेकिन जब ये हायर करते हैं तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मांगते हैं फोरेंसिक्स का और इन सब चीजों का, तो वो एक्सपीरियंस का इशू आता है तो उसको कैसे डील किया जाए? अब
पहले मांगते थे, लेकिन आज आई एम नॉट सीइंग दैट द फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन फॉरेंसिक टीम्स, और वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। हाँ, बेसिक वो क्या मांगते हैं, वो मांगते हैं कि आपका ऑडिट जो आपने आर्टिकलशिप करा है वो अच्छी जगह करा हो, और आपको एक बेसिक आइडिया और बेसिक एक्सपीरियंस हो इंडस्ट्री का। दैट्स इट। If you have worked in a good firm or in a good, you have done a good audits, तो आपको इस चीज का आइडिया हो जाता है। एंड देन फॉरेंसिक इज सच अ फील्ड कि आपको कोई भी ऐसा बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझे बहुत कुछ आ गया और मैं कर रहा हूँ। आज भी आफ्टर 8 years I can say there are a lot of things which I don't know, and which again when I would come across some case I would do it and I would work on that. तो मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अगर कोई आर्टिकलशिप कर रहा है और उसको लगता है कि उसे फोरेंसिक प्रोफाइल में जाना है, तो उसे थोड़ा ऑडिट प्रोफाइल में अपना एक्सपीरियंस अच्छा डेवलप करना पड़ेगा। ऑडिट में और स्पेसिफिकली इंटरनल ऑडिट में एक्सपीरियंस अच्छा डेवलप करना पड़ेगा। उसी के बाद वो आगे प्लान कर सकता है। या अगर आपको कैरियर बनाना है तो आप आफ्टर सीए भी जब आप कैरियर बनाना चाहते हो, अगर मान लो फोरेंसिक में आपको कोई हायर नहीं कर रहा है, तो ऑडिट में, इंटरनल ऑडिट में अपना एक्सपीरियंस अच्छा कर लो, ताकि कल को आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको फोरेंसिक का अच्छा एक्सपीरियंस काउंट कर सकते हैं वो। डेफिनेटली नो डाउट। तो बाकी लोग तो काफी सारे आए नहीं थे। बाकी किसी का क्वेश्चन हो, रेखा, प्रियंका, किसी का कुछ क्वेश्चन हो? हमारे जितने क्वेश्चन थे हमने तो पूछ लिए, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे। अगर किसी को पूछना हो तो सर बाकी हेलो, हाँ जी। तो सर आज के क्वेश्चंस हमारे काफी जल्दी सोल्व हो गए, अदरवाइज में पूरा हमें 1 घंटा लग जाता है। आपने काफी अच्छे से जल्दी जल्दी आंसर दे दिया, तो हमारा सेशन आज आधे घंटे में सोल्व हो गया। और जो एक्सपेक्टेड भी था आपसे। नहीं, see, forensic, I would again say it's a very good field, and still it is unexplored in India. A lot of things are there which are unexplored. So इसमें काम करने का, इसमें एक्सपीरियंस लेने का बहुत स्कोप है। Definitely we should do it, but at the same time it has its own side effects, or it has its own negatives, which is pressure. Pressure would be there a lot, so you have to handle the pressure accordingly. आपको काम सारे मिलेंगे, आपको सब काम हैंडल करना आना चाहिए, प्रेशर देखना आना चाहिए। बिकॉज प्रेशर कहाँ पे आता है, जब आप फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाते हो तो आपके पास हर टाइप से प्रेशर आता है कि यार किसको कैसे कर, सर इस रिपोर्ट में ये मत करो, वो मत करो, एंड ऑल दैट स्टफ। सर ये नहीं है, ये ठीक है। इवन I would give my experience when I first went to the court of law as a expert witness. What I said in the court of law and what I gave the report, that the report, the judge totally dismissed the report. उसने वो रिपोर्ट उठा के लिटरली ऐसे बैंक किया, ये रिपोर्ट क्या है? एंड हम कहते थे यार हमने तो बहुत मेहनत करी है, रिपोर्ट बहुत अच्छी है, राइट? तो वो लेवल तक भी आता है। बट यस, फर्स्ट टाइम हुआ था। टुडे आफ्टर दैट आई हैव बीन टू एन नंबर ऑफ कोर्ट्स एज अ एक्सपर्ट विटनेस, and I have not faced again, because now I know what exactly the judge wants it. क्या सुनना चाहते हैं? गीता पात्र की कसम भी खिलाते हैं, वो सब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यस, उसका अपना एक अलग मजा है। अभी हमारा हाल वो हो गया है कि रात को मैं कहीं बैठा हूँ, मे बी 100 ऑफ पीपल, एंड 50th पीपल के बाद कोई बंदा कहता है फ्रॉड, और मेरा कान एकदम से खड़ा हो जाएगा, ये फ्रॉड किसने बोला है? क्या बात हो रही है? क्या डिस्कशन चल रहा है? क्या डिस्कशन चल रहा है? और समटाइम्स ये भी होता है कि हम एक केस सॉल्व करने में लगे होते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं, और केस सॉल्व नहीं होता, तो रात को सोते सोते भी हमें लगता है यार इसमें क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। रात को एकदम से नींद में आएगा यार ये भी हो सकता है, तो वो उठ के लिख लिया यार कि इसको सुबह चेक करेंगे, ये भी हो सकता है। या कभी कभी तो हम उठ के उस टाइम ही चेक करने लग जाते हैं कि यार देख लेते हैं कि कहीं ये प्रोबेबिलिटी तो नहीं है। So you have all kind of things. Forensic is exciting. As I told you, I love it. Again, it can be a biased opinion because I love it. And yes, the scope and the
area is really good. ओके सर, बाकी हमारी पार्टिसिपेंट है, वो कुछ कहना चाहती है सेशन के बारे में। प्रियंका, आप कुछ कह रहे थे? यस, एक्चुअली ये फॉरेंसिक इज अनएक्सप्लोर्ड फील्ड, और मुझे एक्चुअली भी आइडिया भी नहीं था कि इस एरिया में भी इतना ज्यादा एक्सपोजर है और इतना चीजें हम कर सकते हैं, एंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो सर, रियली ग्रेट सेशन, काफी इंसाइट्स मिले आज इस फील्ड के बारे में भी। नॉर्मली हम इंटरनल ऑडिट और स्टार्ट ऑडिट में ही लगे रहते हैं या फिर बाकी चीजें ही देखते रहते हैं, लेकिन इस फील्ड में इतना अनएक्सप्लोर्ड है ये, या फिर इसका इतना अवेयरनेस नहीं है कि इसका आइडिया ही नहीं था। बट रियली ग्रेट, आज काफी पता चला। Thanks, Priyanka. बाकी सर से मिलो और पता चलेगा आपको। unable to start the video currently. नहीं, मैंने काम किया हुआ है सर के साथ, तो मुझे पता है। अच्छा, ओके। तभी तो हमारे Yes. बुलाने पे एक बार में आ गए सर। नहीं, मैं तो बहुत टाइम, मतलब इट इज सो अनएक्सप्लोर्ड फील्ड कि इसमें लगता है कि हाँ कुछ नया, क्या नया है जानने के लिए। सो रियली ग्रेट। अभी तो बहुत एजेंसीज आ गई हैं जो फॉरेंसिक करवा रही हैं, एम्पैनल कर रही हैं, तो वर्क इज इंक्रीजिंग बाय द डे। सर, इसमें सेमी क्वालिफाइड का भी कुछ एक्सपोजर है क्या, लाइक या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसके बाद ही इसमें कुछ हो सकता है? सेमी या क्वालिफाइड भी फिर सब ऐसा, कुछ कर सकते हैं। अच्छा, मतलब लाइक इंटर्नशिप बेसिस पे या फिर नॉर्मली वो अगर एक्सप्लोर करना चाहे तो? सी, इंटर्नशिप बेसिस पे ही हो सकता है फॉर द टाइम बिंग, बिकॉज अगर हम वर्क करना चाहें तो एवरीबॉडी वुड एक्सपेक्ट अ सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, राइट? तो हम क्या करते हैं कि यार इट इज आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स को सिखाते हैं, फिर उसके बाद सीएज हैं, सीएज को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म काम करेगा, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन हार्डवेयर, यू आर वर्किंग ऑन सॉफ्टवेयर। देन like today I tell you many agencies are coming up with the forensic empanelments. IBA तो आई गया जो बैंक्स का है, सेबी एम्पैनल कर चुका है, हरियाणा रेरा कर रहा है, यूपी रेरा कर रहा है, एसएफआईओ कर रहा है, सीबीआई कर रहा है, ईडी कर रहा है। सो और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है ही। और आज के दिन कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं इन द वर्ल्ड, एक पान की दुकान से लेके इन्फोसिस तक और मे बी टू माइक्रोसॉफ्ट, that any company or anybody can say that there is no fraud in their company. जहाँ पे ह्यूमन बीइंग होगा वहाँ पे ग्रीड होगी, जहाँ पे ग्रीड होगी वहाँ पे फ्रॉड होगा, जहाँ पे फ्रॉड होगा वहाँ पे फॉरेंसिक होगा। फ्रॉड ट्रायंगल के वो तीनों होते हैं ना। बिल्कुल होते हैं। ये काफी इंसाइटफुल सेशन था ये। काफी पता चला। इसमें से प्रेशर भी साथ में ये रहता है। समझ लीजिए हमें फॉरेंसिक के लिए भेजा गया, मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन था, हमें कहा कि यार इस बंदे ने फ्रॉड करा है, एविडेंसेस कलेक्ट कीजिए। सो वी स्टार्टेड आवर वर्क, और 15 दिन के बाद भी हम कोई कंक्रीट एविडेंस ऐसा कलेक्ट नहीं कर पाए। ये बोलना बहुत इजी है कि इसने चोरी कर ली, लेकिन उसको एविडेंस को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, एंड दैट आल्सो which would be admissible in the court of law, because that is critical. तो हम लोगों ने लगा 15 दिन तक कुछ नहीं मिला, फिर एकदम से 28 डे हमें मिलना स्टार्ट हुआ, तो फिर वो मिलते ही चला गया। मतलब इट वाज लाइक अगेन एक मूवी आई थी रेड, इफ यू गाइस हैव सीन, ऑफ अजय देवगन, कि शुरू में कुछ नहीं मिला, फिर कहीं से कुछ मिल गया, तो उसके बाद तो फिर कोई लिमिट ही नहीं थी, सब कुछ ही निकल गया। सो फॉरेंसिक आल्सो इज लाइक दैट, कि आपको पहले कुछ ना कुछ एक रे ऑफ होप, एक एंड मिलना चाहिए, देन यू कैन जस्ट स्टार्ट गेटिंग द थिंग्स। जैसे एक ऑडिट में एक सेइंग भी है, लाइक यू लाइक डिटेक्टिव माइंड, इसके अंदर एनालिटिकल माइंड काफी चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। हाँ, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। एंड एक सेइंग भी है कि वन शुड बी, मुझे याद नहीं आ रहा है, वन शुड बी हाउंड या समथिंग ऐसे करके एक सेइंग है कि ऑडिटर इज नॉट अ वॉचडॉग, ही इज अ ब्लड हाउंड। क्या बोलते हैं सर? हाँ हाँ। नहीं, but auditors are not bloodhounds, but forensic auditors are really investigators. हाँ, लाइक पूरा डिटेक्टिव एनालिटिकल माइंड चाहिए इसके अंदर। अब हो गया ना, हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके नॉर्मल क्लाइंट्स, जिनके स्ट्रक्चरल ऑडिट के हम करते हैं,
सो दे ऑल्सो एक्सपेक्ट कि मुझको सर आप मत आ जाना, आप आगे तो ऑडिट आप कंप्लीट होने नहीं दोगे और आप कुछ ना कुछ निकालते चले जाओगे, वेयर इज द स्कोप ऑफ वर्क इज नॉट दैट मच, क्योंकि अब आदत वो पड़ गई है। वो कहते हैं ना सीआईडी वाले प्रद्युमन की, मजे आ रहे हैं, यहाँ मजे आ रहे तो हैं, है, कुछ तो यहाँ कुछ तो है। मजे आते It रहते is हैं, part मजे and आते parcel of रहते हैं। life, part and parcel of our profession, so we love it. नहीं सर, वेरी ग्रेट सेशन। Yeah, जो एक्सपेक्टेड feel था like वो, जो एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा सीखने को मिला, और मुझे तो खैर पता ही था, काफी चीजें और भी नहीं सीखने को मिली, लेकिन जो लोग सुनेंगे उनके लिए काफी कुछ चीजें हैं जो उनको सीखने मिलेगी। तो थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। बाकी फिर किसी दिन हम अभी हमारा एक साइकिल चल रहा है, दोबारा दूसरा साइकिल आएगा तो हम दोबारा से आपको तकलीफ देंगे। इसमें ना पीयूष एक प्रॉब्लम भी था आई गेस, बिकॉज 2 ऑफ माय फ्रेंड्स आस्क्ड फॉर पासवर्ड, आई गेस या तो उनको पासवर्ड नहीं था, सो बहुत लोगों ने ना लिंक को प्रेस किया एंड देन शायद से वो आगे ही नहीं बढ़ पाए, स्किप कर दिया होगा उन्होंने, वरना नॉर्मली पता नहीं यार। पार्टिसिपेंट्स तो मैं देखती हूँ इसमें काफी रहते हैं, लेकिन आई गेस इसमें ना इस बार पासपोर्ट का कुछ प्रॉब्लम था। कोई नहीं, अब यार देखो जिसको आना है वो आ जाता है यार, नहीं, फोरेंसिक का यूट्यूब लेक्चर पे है, तो आपको थोड़ा सा तो फोरेंसिक यूज करना चाहिए। एक्चुअली कोई नहीं, बाकी हमारा दूसरा साइकिल भी आएगा, हम दोबारा भी कह रहा हूँ सर से, इस सर को दोबारा से तकलीफ देंगे तो करेंगे सर। बाकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया हमें। तो ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।